Hello everyone. So in our last video we will discuss about the health team. Okay, the health team is a group of people who are belonging from the different department working together to achieve a common goal. The common goal is related to the health. Okay, to provide a good qualitative care to the community peoples. Okay, so today we'll discuss about the what are the job responsibility of these health person. Those are working together because each one having their different function. Okay, so let's start the topic. The first one is job responsibility of the health assistant female, that is a lady health visitor. Okay, और द फीमेल सुपरवाइज़र. ओके, आपने देखा होगा जो CSC लेवल्स होते हैं, इवन द CSC एंड द PSC बोथ लेवल्स, द लेडी हेल्थ विजिटर आर अवेलेबल्स. एक्चुअली लेडी हेल्थ विजिटर प्लेइंग अ रोल लाइक द सुपरवाइज़र. जैसे आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर आपके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे सुपरवाइजर्स होते हैं ना, एज इट इज़ लाइक जो लेडी हेल्थ विजिटर्स होती हैं वो एज अ सुपरवाइज़र वर्क करती हैं. एंड लेडी हेल्थ विजिटर के अंडर में आती हैं आपकी एनम्स. ठीक है, वो एनम्स के वर्क को सुपरवाइज करती हैं. ठीक है, सो under the multi-purpose worker scheme, a health assistant female is expected to cover the population of 30,000 and 20,000 tribal and hilly areas, okay, in which there are the 6 sub-center, each with the health worker female. Okay, the health assistant female will carry out the following duties. Okay, so lady health visitor appointed in 30,000 population in urban and 20,000 population in rural. Okay, and also they are appointed in a sub-center levels. Okay, so they having a following duties. The first one is the supervision and the guidance. Okay, so supervise and guide the health worker female DAIs, ashas in a delivery of the healthcare services to the community. So how they are providing the healthcare services to the community peoples, they are supervise and guide the health workers. हेल्थ वर्कर्स किन हेल्थ वर्कर को गाइड करती है? ये फीमेल हेल्थ वर्कर्स को, एनम्स को, आशास को, ठीक है, दाइज को. नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेंथ, नॉलेज एंड स्किल ऑफ द हेल्थ वर्कर फीमेल. कि जो हेल्थ वर्कर्स फीमेल, जिन्हें फीमेल हेल्थ वर्कर्स हैं, आपकी दाई हैं, आशा है, एनम है, उनके स्ट्रेंथ को बिल्डअप करती है, उन्हें मोटिवेट करती है और उनकी नॉलेज को अपग्रेड करती है, नॉलेज एंड स्किल को अपग्रेड करती है बाय प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ awareness programs. Okay, help the health worker female in improving her skill in working the community. Okay, then help and guide the health worker female in planning and organize the program of activities. For example, if they are conducting the counseling for the pregnant women, आपने देखा होगा PSC और CSC में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, जिनके लिए प्रेग्नेंट वुमेन की गैदरिंग की जाती है एक पर्टिकुलर डे में. फॉर एग्जाम्पल इम्यूनाइजेशन डे है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन डे में बहुत सी फीमेल्स आती हैं हॉस्पिटल्स में. so that they are conducting some program to provide the awareness to the community people, especially the pregnant women, because they are focusing on the pregnant women, the postnatal mothers as well as the childs. Okay, so इसके लिए जो लेडी हेल्थ विजिटर है वो फीमेल हेल्थ वर्कर को हेल्प करती है, गाइड करती है, ठीक है, कि उसे किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना है. नाउ विजिट ईच सब सेंटर एटलीस्ट वंस अ वीक ऑन अ फिक्स डे टू ऑब्जर्व एंड गाइड द हेल्थ वर्कर फीमेल. सो जो हेल्थ वर्कर्स अपॉइंटेड हैं सब सेंटर लेवल्स में, ठीक है, उन्हें गाइड करती है, उन्हें विजिट करती है वंस में वन टाइम, ठीक है, बाय द दे हैविंग एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, टू प्रोवाइडिंग द क्वालिटेटिव केयर इन अ कम्युनिटी लेवल्स. नेक्स्ट वन इज असिस्ट द fortnightly and the progress of the assessment report work of the health worker female and submit with the respect of their duties under the various नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स. ठीक है, इसके अलावा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के अंडर जो भी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हेल्थ वर्कर की, वो उन्हें असाइन करती है, उनसे रिपोर्ट कलेक्ट करती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एनम्स की बात करते हैं तो एनम्स दे आर कलेक्टिंग द रिपोर्ट रिगार्डिंग द हाउ मैनी एंटीनेटल मदर्स इन अ मंथ, ठीक है, हाउ मैनी पोस्टनल मदर्स, हाउ मैनी न्यू बॉर्न बेबीज़. ओके, how many mother are die in between the third stage of labor, how many baby are the die in between the
1 month after the birth. Okay, so these kind of the health report they are collecting from the female health worker and send to the upper level. Okay, carry out the supervisory home visit in the area of the health worker female with the respect of their duties under the various national health programs. ओके इसके अलावा क्या करती है, कैरिड आउट करती है, सुपरवाइज करती है, होम विजिट करती है एरियाज़ में जहाँ पर क्या है फीमेल हेल्थ वर्कर वर्क करती हैं, ठीक है, अंडर द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के, ठीक है. नाउ द सुपरवाइज रेफरल टू ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन फॉर द RPR टेस्टिंग एट द PSC. इफ़ द प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर किसी पर्टिकुलर एरियाज़ के जहाँ पे सब सेंटर है, ठीक है, सब सेंटर क्या होता है, लेस पॉपुलेशन में अवेलेबल होता है, जनरली 7,000 पॉपुलेशन में अवेलेबल होता है आपका सब सेंटर, ओके, अर्बन में. सो जो पॉपुलेशन है उनकी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वहाँ पे उनको क्या करते हैं RPR के लिए सेंड करती हैं PSC लेवल्स में, ठीक है, रेफ़र करती है उन्हें. इसके अलावा टीम वर्क की हम बात करते हैं तो हेल्प द हेल्थ वर्कर टू वर्क एज अ पार्ट ऑफ द हेल्थ टीम. दे हैव टू coordinate with the health worker to achieve their goal. Coordinate her activity those of the health assistant male and other हेल्थ पर्सन इंक्लूडिंग द आइज, ठीक है. सो ये कोऑर्डिनेट करती हैं एक्टिविटीज़ के साथ, जो वट एवर द एक्टिविटीज़ दे हैव टू कंडक्ट टू फंक्शन देयर रोल, ओके, उसके लिए उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है. स्पेशली ऑल्सो द असिस्ट द मेल हेल्थ पर्सनस, ओके. Coordinate the health activities in the area with the activities of the worker, other department, agency, attend the meeting at PSC levels. अपन देखा होगा PSC लेवल्स में डिफरेंट काइंड ऑफ मीटिंग कंडक्ट करा जाती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की. जैसे फॉर एग्जांपल ANMs की मीटिंग्स होती हैं, स्टाफ की मीटिंग्स होती हैं, आशाओं की मीटिंग करवाई जाती है, राइस की मीटिंग करवाई जाती है. तो ऐसी एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, ठीक है. Then conduct the regular staff meeting with the health worker and coordinate with the health assistant male, ठीक है. जो मेल हेल्थ असिस्टेंट होते हैं उनके लिए भी क्या करती है, मीटिंग कंडक्ट कराती हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है. अटेंड द स्टाफ मीटिंग एट द PSC लेवल. सो ऑल द स्टाफ अटेंड द मीटिंग इन द PSC लेवल. असिस्ट द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन ऑर्गेनाइज ऑफ द डिफरेंट हेल्थ सर्विसेज इन एरिया, ओके. सो प्राइमरी हेल्थ लेवल में जो आपके मेडिकल ऑफिसर जिसे हम बोलते हैं MOIC, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज इन CSC और द PSC, ठीक है, उन्हें क्या करती है, असेस करती है, ठीक है, और उनके साथ डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में पार्टिसिपेट करती है, ओके. पार्टिसिपेट एज द मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम इन द मास कैंपिंग इन हेल्थ प्रोग्राम, ओके. इसके अलावा क्या करते हैं, जो भी हेल्थ, जैसे आपने देखा होगा हेल्थ कैंप्स लगते हैं especially for the hilly peoples, the rural peoples where the health facility are not available and the least health facility available, okay. So also they have to coordinate in this kind of program, okay, with the other health team members. The facility participate in the activities of the Blaze Health and Nutrition Day. So Blaze Health और जो न्यूट्रिशन डे होता है उनमें क्या करती है, फैसिलिटेट करती है और पार्टिसिपेट करती है डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ में, ओके. Then supply and equipment and the maintenance of the sub center. इसके अलावा क्या करती है, सप्लाई करती है, सप्लाई एंड इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द सब सेंटर लेवल्स. सो सब सेंटर जो लेवल्स है, बिकॉज सब सेंटर लेवल क्या है, बहुत स्मॉल यूनिट होता है आपके हेल्थ सेक्टर का. तो सब सेंटर लेवल्स में ऑल द इक्विपमेंट्स वगैरह जो सप्लाई किए जाते हैं वो अपर सेंटर यानी कि PSC सप्लाई किए जाते हैं. तो वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स की नीड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल है कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कराना है या मेडिसिन अवेलेबल करवानी है या वैक्सीन अवेलेबल करानी है, तो वो सारा सप्लाई जो होता है लेडी हेल्थ विजिटर के कोऑर्डिनेशन के थ्रू सप्लाई किया जाता है, ठीक है. सो इन कोलैबोरेट विद द हेल्थ असिस्टेंट मेल एंड चेक द रेगुलर इंटरवल स्टोर अवेलेबल एट द सब सेंटर एंड हेल्प इन द
procurement of supply and equipment. So whether the equipment are available in the sub-center level or not, they have to get the report from the male health worker. Those are appointed in a sub-center side. Okay, और if any kind of lacking of any health facility, तो वहाँ पे वो available कराती है. For example, drugs नहीं है, vaccine नहीं है, ठीक है. Check the drugs at the sub-center are properly stored and that are equipped is well maintained. तो सब सेंटर लेवल में प्रॉपरली क्या करती है, जो मेडिसिन सप्लाई की है उसे प्रॉपरली स्टोर करती है, उसे चेकआउट करती है, ठीक है. और उसे वेल मेंटेन किया गया है या नहीं किया गया, यानी प्रॉपरली अपनी जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी वैक्सीन्स होती हैं वो डीप फ्रीज में रखी जाती हैं, ठीक है. तो सप्लाई के बाद वो प्रॉपरली उन्हें प्लेस किया गया है, उसको भी श्योर करती है. इंश्योर दैट द हेल्थ वर्कर फीमेल मेंटेन हर जर्नल किट, मिडवाइफरी किट, डाई किट इन अ प्रॉपर वे. ओके, तो जो फीमेल हेल्थ वर्कर्स होती हैं उनके लिए क्या कहते हैं, इंश्योर करती है वेदर दे हैव टू मेंटेन देयर किट लाइक जर्नल किट. ओके, जैसे प्राइमरी लेवल जो किट होती है उसे जर्नल किट बोलते हैं, जिसमें आपके बैंडेज आती हैं या फिर एंटीबायोटिक्स आती हैं, कोई ऑइंटमेंट आते हैं, ठीक है. जो प्राइमरी लेवल या फर्स्ट एड लेवल में जो किट हम प्रिपेयर करते हैं, मिडवाइफ किट, ठीक है, मिडवाइफ किट फॉर द डिलीवरी, डाई किट फॉर द डिलीवरी ऑल्सो. ओके, सो दे हैव टू इंश्योर वेदर द दीज किट आर अवेलेबल विद द हेल्थ पर्सन और नॉट. ओके, इंश्योर द सब सेंटर इज अ कीप क्लीन एंड प्रॉपरली. इसके अलावा मेंटेनेंस करना, क्लीनेंस एंड ऑल को भी सुपरवाइज करती है लेडी हेल्थ विजिटर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स. सो दे हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड बाय द हेल्थ वर्कर फीमेल एंड द गाइड हर इन अ प्रॉपर मेंटेनेंस. ओके, सो किस तरह से रिपोर्ट बनानी है, किस तरह से रिपोर्ट को मेंटेन करना है, हाउ दे विल सेंड द रिपोर्ट. ओके, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ रिपोर्ट. वो क्या करती है, सुपरवाइज करती है, हेल्प करती है हेल्थ वर्कर्स को. देन द रिव्यू रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम द हेल्थ वर्कर फीमेल एंड कंसोलिडेट दैम, सबमिट मंथली रिपोर्ट एंड मेडिकल ऑफिसर ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर. ठीक है, तो रिव्यू करती है रिपोर्ट को, जो भी रिपोर्ट से हेल्थ वर्कर के थ्रू मिलती है. जैसे फीमेल हेल्थ वर्कर्स एनम है, आशा हैं, दाई हैं, वो मंथली रिपोर्ट देते हैं लेडी हेल्थ विजिटर को. सो लेडी हेल्थ विजिटर उसमें रिपोर्ट को रिव्यू करती है वेदर द एनी काइंड ऑफ द रॉन्ग थिंग इज़ देयर, या फिर कोई लैकिंग रह गया है. ठीक है, इसके बाद क्या करती है वो, दे हैव टू सबमिट मंथली टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी मेडिकल ऑफिसर को वो सबमिट करती है. ठीक है, वेयर द काला आजार इज़ एंडेमिक एडिशनल ड्यूटीज़ आर. अगर काला आजार जैसे कम्युनिटी लेवल में काला आजार अगर स्प्रेड हुआ है तो उसमें ये होता है, उसकी जो ड्यूटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करती है. ठीक है, शी विल सुपरवाइज द वर्क ऑफ द हेल्थ फीमेल वर्कर ड्यूरिंग द अकरेंस विजिट एंड विल चेक द वेदर द वर्कर इज़ परफॉर्मिंग हर ड्यूटीज़. ठीक है, तो काला आजार की क्या एडिशनल ड्यूटीज़ लगती हैं अगर किसी कम्युनिटी में काला आजार स्प्रेड हुआ है तो जिसके लिए करती है जो लेडी हेल्थ विजिटर होती है वो सुपरवाइज करती है एनम्स को वेदर दे हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटी or not. Okay, she should check the minimum 10% of the house in a village to verify the health female worker really visit those house and carry her job properly. तो क्या करती है 10% ऐसे विलेजेस में वो विजिट करती है, बिकॉज एक लेडी हेल्थ विजिटर के पास बहुत बड़े लेवल्स में एरिया होता है. ठीक है, जिसके अंडर एनम्स आती हैं, एनम्स के अंदर आशाएँ आती हैं, ठीक है, और दाइज होती है. ओके, सो अब वो सारी जगह तो जा नहीं सकती है, तो लेडी हेल्थ विजिटर क्या करती है सिर्फ 10% अपनी टोटल पॉपुलेशन में विलेज विजिट करती है, सो दैट दे हैव टू फाइंड आउट वेदर द फीमेल हेल्थ वर्कर आर प्रोवाइडिंग द डोर टू डोर हेल्थ केयर सर्विसेज और नॉट. ओके, स्पेशली अगर उसकी जॉब मीन्स उसकी ड्यूटी लगी है काला आजार केसेस के लिए. ठीक है, हर जॉब टू आइडेंटिफाई द सस्पेक्टेड काला आजार केसेस एंड इंश्योरिंग कंप्लीट ट्रीटमेंट हैज़ बीन डन प्रॉपरली, एंड ऑल्सो दे हैव टू फाइंड आउट द सस्पेक्टेड केस ऑफ द काला आजार इन अ कम्युनिटी एज वेल एज दे आर प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर ट्रीटमेंट थ्रू देयर हेल्थ वर्कर. ओके, सो विल कैरी विद हर द प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर्म, डायरी एंड द गाइडेंस फॉर द आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड काला आजार. तो वो जितना भी रिकॉर्ड है कि हाउ मेनी पेशेंट आर द सफरिंग फ्रॉम द काला आजार, हाउ मेनी पेशेंट आर द सस्पेक्टेड फ्रॉम द काला आजार. ओके, ये सारा क्या करती है अपनी डायरी में वो रिकॉर्ड करते हैं. शी विल बी रिस्पॉन्सिबल अलॉन्ग विद द हेल्थ असिस्टेंट मेल फॉर इंश्योरिंग द कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ द काला आजार पेशेंट इन हिज एरिया. ठीक है, सो ये क्या करती है, शी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ, जो हेल्थ असिस्टेंट मेल है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो क्या कर रहे हैं, दे इंश्योर दैट दे हैव टू प्रोवाइड द कंप्लीट ट्रीटमेंट टू द काला आजार पेशेंट इन द पर्टिकुलर एरिया. तो जो हेल्थ मेल वर्कर्स है जो एरिया में अपॉइंटेड है वहाँ पे वो काला आजार के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं या नहीं, उसके लिए भी क्या करती है रिस्पॉन्सिबल होती है. शी विल बी रिस्पॉन्सिबल अलॉन्ग विद द हेल्थ असिस्टेंट ऑफ द मेल इंश्योरिंग द कंप्लीट कवरेज ड्यूरिंग द स्प्रे एक्टिविटीज एंड द
सर्च ऑपरेशन, ठीक है। सो जो हेल्थ मेल वर्कर्स होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, उनके साथ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कवर अप करे ऐसे एरियाज़ को, ठीक है, और स्प्रे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। शी विल आल्सो अंडरटेक health education activity, participate through the interpersonal communication, arrange the group meeting with the leaders and organizing the conducting training community leader with the assistance of the health team, okay। इसके अलावा क्या करती है वो मीन्स अब जिस पर्टिकुलर एरिया में काला आजार स्प्रेड हुआ है, ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन प्रोग्राम कंडक्ट करवाती हैं, लीड करती है, उसके लिए कम्युनिकेट करती है पीपल्स को टू पार्टिसिपेट इन और टू अटेंड दीज प्रोग्राम्स, ओके। Now, where the Japanese encephalitis is endemic, her the specific duties are as below, okay। So अगर Japanese encephalitis है तो उसके लिए भी क्या है, इसकी different duties है। She will be supervise the work of the health female worker during the occurrence visit and will check whether the working is perform her duties. So she will be actually supervised to the health female worker those are providing the care in the endemic और जो areas है वहाँ पे, ठीक है। She should also check the 10% of the village house whether the health person are providing the proper health facility to the particular means door to door or not, ठीक है। She will carry out her proper records from diary as like in a Kala Ajar, okay। She will be responsible for ensuring the complete treatment of the Japanese encephalitis patient in her area। अगर उसके एरिया में Japanese encephalitis का पेशेंट है तो उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होती है, कंप्लीट ट्रीटमेंट उससे प्रोवाइड करवाती है। शी विल बी रिस्पॉन्सिबल अलॉन्ग विद द हेल्थ असिस्टेंट मेल फॉर इंश्योरिंग द कंप्लीट कवरेज ड्यूरिंग द स्प्रे एक्टिविटी एंड सर्च ऑपरेशन, ओके। तो सर्च ऑपरेशन के लिए हाउ मेनी पीपल आर द सफरिंग, हाउ मेनी पीपल आर द सस्पेक्टेड, ओके, वट इज़ द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द जापानीज एंसेफेलाइटिस एंड ऑल्सो द स्प्रेडिंग द स्प्रे एंड ऑल्स, उसके लिए भी ये कोऑर्डिनेट करती है। शी विल बी अंडरटेक द हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटी, पार्टिसिपेट थ्रू द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सो शी विल बी यूज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड meet with the peoples and aware the people to attend the education programs which are organized by the primary health centers, okay। So they are also providing the training, okay। आपने देखा होगा जो PSC लेवल्स होते हैं वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज मीन्स चलते रहते हैं, ठीक है। सो ट्रेनिंग किसको देती है, लेडी हेल्थ विजिटर आर ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द ट्रेनिंग फॉर द राइस आशा विद द असिस्टेंस ऑफ द हेल्थ फीमेल वर्कर, ठीक है। तो जो फीमेल हेल्थ वर्कर होती हैं उन्हें उनके असिस्टेंस से क्या करती है, कंडक्ट कराती हैं मीटिंग और ट्रेनिंग किसके लिए, दाइस के लिए, आशा के लिए। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो हम डे बाय डे रिसर्चर्स करते हैं, जो भी रिसर्चेस होती है उसके बेसिस में हम क्लिनिकल प्रैक्टिस को चेंजेस करते हैं। सो व्हाट आर द प्रैक्टिसेस आर द चेंजेस, दे हैव टू अवेयर द हेल्थ पर्सन लाइक दाइस आशा दोज आर प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर फैसिलिटी इन अ विलेज लेवल बाय द डोर टू डोर, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। अब इतने बड़े विलेज लेवल में लेडी हेल्थ विजिटर खुद से विजिट करके प्रोवाइड तो नहीं कर सकती है। सो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, पर्टिकुलर विलेज के लिए एक पर्टिकुलर आशा और दाइस को अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। तो मिडवाइफ से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, न्यू अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, वो लेडी हेल्थ विजिटर हेल्थ वर्कर्स के थ्रू कम्युनिटी में प्रोवाइड करती है। तो पहले उसके लिए वो ट्रेन करती है हेल्थ वर्कर्स को। असिस्ट द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर तो कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वेरियस कैटेगरी ऑफ द हेल्थ पर्सनस। तो जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द हेल्थ पर्सन के लिए जो भी ट्रेनिंग या प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं उसमें क्या करती है, हेल्प आउट करती है। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, ओके। सो कंडक्ट द वीकली MCH क्लिनिक एट द ईच सब सेंटर एंड असिस्ट द हेल्थ वर्कर फीमेल एंड दाइस। तो क्या करती है, जो हेल्थ वर्कर्स फीमेल होती हैं और दाइस होती है उन्हें भी हेल्प आउट करती है और विजिट करती हैं MCH सेंटर में, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर में और सब सेंटर लेवल्स पर, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, डिलीवरी कंडक्ट करवाई जाती है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किए जाते हैं, ओके। लेडीज़ को इम्यूनाइज़ किया जाता है, बेबीज़ को इम्यूनाइज़ किया जाता है। रिस्पॉन्स टू ऑल द कॉल फ्रॉम द हेल्थ वर्कर फीमेल, द हेल्थ वर्कर मेल, द हेल्थ गाइड एंड द ट्रेन दाइस एंड रेंडर द नेसेसरी हेल्प, ओके। सो क्या करती है, हेल्थ वर्कर जो फीमेल्स होती हैं या मेल हेल्थ वर्कर होती है उन्हें गाइड करती है, उन्हें ट्रेनिंग करती है, और जो दाइस होती है उन्हें ट्रेन करती है, ठीक है, और जो भी नेसेसरी हेल्प होती है उन्हें प्रोवाइड करवाती है। कंडक्ट द डिलीवरी व्हेन रिक्वायर्ड एट द PSC लेवल एंड प्रोवाइड द डोमेस्टरी एंड मिडवाइफ सर्विसेज, ठीक है। इफ द ANM आर नॉट अवेलेबल, ओके, इन एनी केस और इन एनी इमरजेंसी शी विल बी कंडक्ट द डिलीवरी ऑल्सो, ओके। The family welfare and the medical termination of the pregnancy. So in that, what are the role and function of the lady health visitor? She will ensure through the spot checking that the health worker female maintain up to the date eligible couple register all the time, ठीक है। तो जितने में eligible couples हैं कम्युनिटी में, ठीक है,
वो रजिस्टर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसके लिए क्या करती है, चेकआउट करती है, स्पॉट चेकिंग आउट करती है, ठीक है। फीमेल हेल्थ वर्कर्स को रिपोर्ट लेती है, उनकी अप टू डेट रिपोर्ट की इस मंथ में कितने एलिजिबल कपल्स हैं, कितने मदर्स प्रेग्नेंट हुई हैं, ठीक है। कंडक्ट द वीकली फैमिली प्लानिंग क्लिनिक अलॉन्ग विद द एमसीएच क्लिनिक एट द सब सेंटर विद द असिस्टेंट ऑफ द हेल्थ फीमेल वर्कर। और फैमिली प्लानिंग क्लिनिक क्या करते हैं, कंडक्ट करती है सब सेंटर ऑफ एमसीएच सेंटर में। पर्सनली मोटिवेट द असिस्टेंट केस ऑफ द फैमिली प्लानिंग। जो फैमिली प्लानिंग केसेस होते हैं, जैसे बहुत से अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन देयर मिस दे नॉट अप्लाइंग एक्चुअली द प्रॉपर फैमिली और यूज़ द प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो उनके लिए क्या करती है, उन्हें मोटिवेट करती है फैमिली प्लानिंग के लिए, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को अडॉप्ट करने के लिए। प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑन द अवेलेबल ऑफ द सर्विस फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एंड द स्टरलाइजेशन, एंड ऑल्सो दे हैव टू प्रोवाइड द services regarding the medical termination of the pregnancy, and also they have to follow the what are the criteria for the medical termination of the pregnancy, okay। अपने को PSC CSC लेवल में कैंप लगते हैं टूबैक्टमी और वेसेक्टमी के लिए, ठीक है, जिसके लिए जो लेडी हेल्थ विजिटर्स होती हैं वो उसमें असिस्ट करती हैं प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए, पीपल्स को मोटिवेट करती हैं, ठीक है, थ्रू अपने जो उसके हेल्थ वर्कर्स हैं उनके थ्रू पीपल्स को अवेयर कराती है रिगार्डिंग द टूबैक्टमी एंड वेसेक्टमी फॉर अडेप्टिंग द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, ओके। देन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द MTP, ठीक है, कौन से क्राइटेरिया जब MTP कर सकते हैं, कितने मंथ तक MTP कर सकते हैं, कौन से प्रोसेसर से हम MTP करते हैं। देयर इज़ नो एनी हार्म अगर मदर क्या करते हैं MTP कराती हैं, ठीक है। बट MTP के क्या है, कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं सब, मीन्स फॉर एग्जांपल अभी क्या है, फीमेल फिटोसाइट से जनरली किस में होता है, MTP के थ्रू करवाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, तो वो उसके रिगार्ड में क्या एजुकेट करती है। गाइड द हेल्थ वर्कर फीमेल इन एस्टैब्लिशिंग द फीमेल डिपोर्ट होल्डर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द conventional contraceptive and train the depot holder with the assistance of the health worker female, okay। so they have to guide the health worker, establish the depot, ठीक है, और क्या करती है, कन्वीनियंस करती है कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स के लिए, ट्रेन करवाती है जो फीमेल हेल्थ वर्कर्स होती हैं उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स के लिए, सो दैट कि पीपल्स को मीन्स अवेयर कर सके। प्रोवाइड द IUCD services and their follow-up, okay। then assist the MOPSC in the organization of the family planning camps and drives, जिसमें मैंने आपको कहा कि PSC लेवल्स में क्या होता है, फैमिली प्लानिंग कैंप्स होते हैं, तो उसके लिए भी क्या करती है, हेल्प आउट करती है। न्यूट्रिशन लेवल में देखा जाए तो इंश्योरिंग द ऑल द केसेस ऑफ द माल न्यूट्रिशन अमंग द इन्फेंट यंग 0 to 5 ईयर आर गिविंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट एंड एडवाइस, रेफर सीरियस केसेस टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सो ये क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन हाउ मैनी पीपल्स और हाउ मैनी चाइल्ड having a malnutrition, okay, in between the 0 to 5 year of age group. Then after that, according to the ratio, they have to provide the proper treatment or advice to the family, okay, in a PSC levels, okay। ensure the iron, folic acid, vitamin A distribution to be the beneficiary at the prescribe, okay। as we all know that the government are providing a free of cost iron and folic acid and vitamin A supplementary to the 0 to 5 year of the child, and this is very necessary to the child. So lady health visitor are trained to the health workers so that they have to provide the information to the peoples those are having a child age group between the 0 to 5 year, so that they have to follow these all and they have to use these medicines in a free of cost from the PSC and the CSC labels. Educate the expected mother regarding the breastfeeding, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग मदर को एजुकेट करती है, वट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, वट आर द पोजीशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, वट आर द इनिशियल ब्रेस्ट फीडिंग, वट आर द एक्चुअली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ओके। द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आल्सो दे हैव टू पार्टिसिपेट इन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, सो दे हैव टू सुपरवाइज द इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल द प्रेगनेंट वुमेन एंड द चिल्ड्रन। तो जितने भी, क्योंकि MCS सेंटर में गवर्नमेंट में MCS सेंटर में या फिर PCC लेवल में MCS सेंटर सेपरेट होता है एक्चुअली, ठीक है। तो MCS सेंटर में या फिर जो इम्यूनाइजेशन रूम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे चाइल्ड को इम्यूनाइज करवाया जाता है। तो उसके लिए भी क्या करते हैं, जो फीमेल हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये फंक्शन कंडक्ट करते हैं, उन्हें सुपरवाइज करती है, ठीक है। शी विल आल्सो गाइड टू द मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल और मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल टू प्रोड्यूस द सप्लाई ऑर्गेनाइज इम्यूनाइजेशन कैम्प, ठीक है। तो जो मल्टी हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं या मल्टीपर्पज़ वर्कर्स जो होते हैं मेल और फीमेल, उनको हेल्प आउट करती है, गाइड करती है, सो दैट कि इम्यूनाइजेशन
वो उन्हें हेल्थ एजुकेट कर मतलब वो हेल्थ एजुकेट कर सके कम्युनिटी को रिगार्डिंग द इम्यूनाइजेशन। सुपरवाइज द इम्यूनाइजेशन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड द इन्फेंट, जो इन्फेंट्स होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, उनके कहते इम्यूनाइजेशन को सुपरवाइज करती है। सुपरवाइज का मतलब होता है कि प्रॉपरली इम्यूनाइजेशन हो रहा है या नहीं है, कितनी मदर्स को इम्यूनाइजेशन होगा, कितनी मदर रिमेनिंग रह गई, कितने चाइल्ड रिमेनिंग रह गए पर्टिकुलर एरिया के, ठीक है। फॉलोइंग द डायरेक्शन गिवन इन द मैनुअल हेल्थ वर्कर फीमेल अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और जो भी गाइडलाइन है मैनुअली फीमेल हेल्थ वर्कर्स की, ठीक है, उसके लिए उन्हें फॉलोअप करवाती हैं, जो क्या है अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर कम्युनिटी एरिया में है तो उसके लिए करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू अश्योर द पल्मोनरी केसेस, कितने का पल्मोनरी केसेस हैं। इसके अलावा प्रोवाइड द सुटेबल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर केसेस, इंश्योर द अर्ली रेफर टू द डाउटफुल एरिया एंड द, अगर फॉर एग्जांपल पीएससी लेवल्स में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का कोई कि निमोनिया का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल्स नहीं है, सो दे हैव टू रेफर द पेशेंट टू द हायर सेंटर फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। ओके, स्कूल हेल्थ, सो असिस्ट द मेडिकल ऑफिसर इन द स्कूल हेल्थ सर्विसेज। स्कूल हेल्थ सर्विसेज में क्या करते हैं, वी हैव टू ऑर्गेनाइज वन कैंप फॉर द स्कूल एंड वी आर गोइंग टू द डिफरेंट स्कूल, okay, organize one camp in the school side only and we have to check the health status of the childs के, जैसे हमने फॉर एग्जांपल अंडर 5 ईयर कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया है, तो जिसमें अंडर 5 ईयर में क्या है, बेबीज़ का फिर मीन्स मीडास हेल्थ एंड ग्रोथ चेकअप करते हैं, ठीक है, मीडास सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस और उसका बी दैट वन वेट, हाइट, ठीक है। प्राइमरी मेडिकल केयर, सो प्राइमरी मेडिकल केयर के लिए भी क्या करती है, ये कोऑर्डिनेट करते हैं। इंश्योर द ट्रीटमेंट फॉर द माइनर एलिमेंट, प्रोवाइड द ORS, फर्स्ट एड, एक्सीडेंट, इमरजेंसी, रेफर केसेस बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस द प्राइमरी हेल्थ सेंटर टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। ओके, सो प्राइमरी मेडिकल केयर जैसे आपने देखा होगा PSC CSC लेवल में जनरली क्या होती है, फर्स्ट एड केयर तक अवेलेबल्स होते हैं, बट इन CSC लेवल नाउ अ डेज वी हैव टू कंडक्ट ऑल्सो द मेजर ऑपरेशन डिपेंड अपॉन द वेदर द एनी orthopedics and the surgeon and the pediatricians and the gynecologists available or not. Okay, so if they are available they have to conduct the major cases also, but in a PSC levels अगर primary health treatment means सिर्फ फर्स्ट एड फैसिलिटी अवेलेबल है एंड द पेशेंट आर नीडेड मोर अनदर ट्रीटमेंट, ओके, सो दे हैव टू अरेंज द रेफरल सर्विसेज, द इमरजेंसी सर्विसेज फॉर द पीपल्स। ओके, now the health education, they also provide the health education regarding the family welfare, nutrition, immunization, control of the blindness, dental care, national health programs like leprosy, tuberculosis, okay, with the assistance of the health worker female. Okay, arrange the meeting with the leader and the involved the team spreading the message to various health program। तो जो भी न्यू कम्युनिटी में प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जाता है या न्यू कंडक्ट होते हैं प्रोग्राम, उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हेल्थ फीमेल हेल्थ वर्कर्स को, सो दे हैव टू अवेयर द पीपल्स। ओके, organize and conduct to training of the women leader with the assistance of the health female workers, so they have to organize some training programs for the female health workers and train the female health workers so that the female health worker are providing the these kind of the awareness program to the community. Okay, organize and utilize the Mahila Mandal teachers and the other women in the community in the female welfare program including the ICDS personnel. Okay, so they have to generally focusing on the Mahila Mandal and the teachers and the women community, जो क्या कहते हैं वुमेन्स है कम्युनिटी के लिए या फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में, ठीक है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, उनके लिए भी क्या करती है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती है, सो दैट कि ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो कम्युनिटी यूटिलाइज कर सके। ठीक है, नाउ द वट आर द जॉब नेक्स्ट वन इज, ये तो था हमने लेडी हेल्थ विजिटर के बारे में पढ़ा। नाउ नेक्स्ट वन इज द जॉब फंक्शन ऑफ द हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर, दैट इज द एएनएम्स। ठीक है, एएनएम्स आती हैं लेडी हेल्थ विजिटर के अंडर में। ठीक है, तो वट आर द फंक्शन ऑफ द फीमेल ANM, that is she will be carried out the following function. She will carry out the activities related to the various program in the integrated manner with visit to the विलेज हाउस। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो एनम्स होती हैं उनके पास अपने अपने विलेज एरियाज़ होते हैं एंड वो विलेज एरिया में करती हैं हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, रिपोर्ट कंडक्ट करती हैं, मेंटेन करती हैं और
हाई अथॉरिटी में साइन करती हैं, ठीक है। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ में एनम्स का क्या है, एक वाइड रोल है, ओके। दे हैव टू रजिस्टर एंड प्रोवाइड द केयर टू द प्रेग्नेंट वूमन। जितनी प्रेग्नेंट वूमेंस होती हैं थ्रू आउट दियर प्रेगनेंसी पीरियड, वो क्या करती हैं, उन्हें रजिस्टर मीन्स फर्स्ट अर्ली रजिस्ट्रेशन कराती है और थ्रू आउट उनकी प्रेगनेंसी उन्हें केयर प्रोवाइड करती है। इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम दे आर ऑल्सो अवेयर रिगार्डिंग दिस कंडीशन, ओके। इंश्योर दैट द एवरी प्रेग्नेंट वूमन मेक एटलीस्ट द 4 visit for the antenatal checkups. So this is very important that the pregnant women then have to attend minimum 4 antenatal checkups, okay. तो जिसके लिए ये फीमेल जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको अवेयर करती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी नेसेसरी सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट द हाउ मेनी द फीमेल आर प्रेग्नेंट, ओके। सजेस्ट द शेड्यूल फॉर द एंटीनेटल विजिट, और जिस दिन उनका रजिस्ट्रेशन होता है उस दिन क्या होता है, उन्हें एक शेड्यूल मिलता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है जिसमें एंटीनेटल विजिटिंग लिखी हुई होती है, उनका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो जनरली जो फर्स्ट विजिट होता है विद इन द 12 वीक, प्रेफरेबली एज सुन एज पॉसिबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। अगर मदर प्रेग्नेंट है तो फर्स्ट विजिट विद इन 12 वीक वगैरह। 12 वीक का मतलब है कि आपका 3 मंथ, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे फर्स्ट विजिट होना चाहिए, बिकॉज वी आर नो दैट द majority of the congenital abnormality occur during the time of the first trimester only, okay. Now the second visit between the 14 to 26 week and third visit 28 to 34 week and the fourth visit 36 week and the term, ठीक है। 4 विजिट के बाद ईच वीक में मदर को बुलाया जाता है जब तक कि उसकी डिलीवरी ना हो, ठीक है। प्रोवाइड द एंटीनेटल चेकअप अप्स एंड एसोसिएटेड, ठीक है, सर्विसेज सच एज द IFA टैबलेट्स, ठीक है, फॉलिक एसिड हो गई, ट्रिटी इम्यूनाइजेशन हो गया। तो जो एनम्स होती हैं वो क्या करती हैं, इम्यूनाइज करती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ठीक है। उन्हें आयरन फॉलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूशन कराती है थ्रू द आशाज, ओके। द टेस्ट यूनिट ऑफ द प्रेग्नेंट वूमेन और द एल्बुमिन शुगर एस्टिमेटेड हीमोग्लोबिन लेवल्स। तो इस विजिट में जब भी मदर्स आती हैं तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल मेजर करती हैं, ठीक है, टेस्ट करती हैं एल्बुमिन लेवल्स को, शुगर लेवल्स को। Refer to all the pregnant women to PSC and the CSC for the RPR test for the syphilis and the blood grouping, ठीक है। तो ब्लड टेस्टिंग कराती हैं, मदर्स को रेफ़र करती हैं PSC और CSC में, बिकॉज जो एनम्स होती हैं वो फील्ड वर्क करती हैं, ठीक है। तो फील्ड से जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें अवेयर करती है, मोटिवेट करता है कि वो हॉस्पिटल जाके अपने ब्लड टेस्टिंग कराएं, ब्लड ग्रुपिंग करें। ब्लड ग्रुपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट कि मदर को एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो और बेबीज़ में कोई एबनॉर्मलिटीज़ ना आए, ठीक है। रेफर द केस ऑफ द एबनॉर्मल प्रेगनेंसी एंड द केसेस विद द मेडिकल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम टू द हेल्थ असिस्टेंट फीमेल टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो जो लेडी हेल्थ विजिटर होती हैं उन्हें असिस्ट करती हैं किसके लिए, जो भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल को, उसके लिए, ठीक है। कंडक्ट द डिलीवरी इन द सब सेंटर इफ द फैसिलिटी ऑफ द लेबर रूम आर अवेलेबल इन द एरिया वेयर द कॉल फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आपके एनम्स हैं वो PSC लेबल्स में अपॉइंटेड है, ठीक है। कुछ एनम्स होते हैं जो PSC में अपॉइंटेड होती हैं, कुछ एनम्स होती हैं जो फील्ड में अपॉइंट्स होती हैं, ठीक है। तो जो एनम्स फील्ड हॉस्पिटल में अपॉइंट है यानी कि PSC CSC लेवल में अपॉइंट है, वो क्या करते हैं, डिलीवरी कंडक्ट करवाते हैं। सुपरवाइज डिलीवरी कंडक्ट बाय द दाइज एंड असिस्टेंट वेयर द कॉल फॉर, ठीक है। या फिर जैसे अगर वो फील्ड लेवल में अगर वो पोस्टेड है, ठीक है, तो वो ये करती हैं, दाइस को हेल्प आउट करती हैं डिलीवरी कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। हेल्प आउट मतलब उन्हें सुपरवाइज करती हैं, बिकॉज दाई काइंड ऑफ इमरजेंसी है वेयर द हेल्थ पर्सन आर नॉट अवेलेबल, देन ओनली दाई विल बी कंडक्ट द डिलीवरी, अदरवाइज नो नीड टू अटेंड द डिलीवरी कंडक्ट बाय द दाई, ओके। रेफर केस और डिफिकल्ट लेबर, जैसे डिफिकल्ट लेबर है, कॉम्प्लिकेटेड लेबर है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस नॉल्स है, जो PSC लेवल में सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, उसे रेफर करती है अदर इंस्टीट्यूशन के लिए फॉर द further treatment, okay. ANM will be identify the ultimate benefit of the necessary formality, obtain the necessary approval of the complaint authority before the distributing the beneficiary under the Janani Suraksha Yojana, and by the 7th of each month we will submit the accounts of the previous month in the prescribed format to designed by the state government. So ANM क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, as we know that in a urban and rural area स्पेशली इन द गवर्नमेंट सेक्टर्स, ओके। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में भी फैसिलिटी अवेलेबल है, बट वी आर टॉक अबाउट द गवर्नमेंट साइड। सो गवर्नमेंट में इफ़ द हॉस्पिटलाइज्ड डिलीवरी आर कंडक्टेड, देन जो फीमेल्स होते हैं जिनका डिलीवरी कंडक्ट हुआ था प्रेग्नेंट लेडीज़ का, उनको क्या करता है, मनी दिया जाता है, ठीक है।
तो ये क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है वेदर द दीज प्रेग्नेंट लेडीज आर गेट द बेनिफिट फ्रॉम दीज हेल्थ फैसिलिटी विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे हम बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना की, JSY सर्विसेज। सो अंडर द JSY सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग अ 900 रुपीज़ during the time of pregnancy period, and the postnatal time they have to provide it a 500 rupees. If the mother are taking but if the mother will not take any money during their pregnancy time, then the 1400 rupees they are providing at the time after the delivery of the baby. Okay, इसके अलावा 48 आवर्स जब तक कि मदर हॉस्पिटल में है, शी विल गेट अ फ्री फूड फैसिलिटी, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़। ओके, इसके अलावा क्या करती है, एनम्स एक मंथली वर्क शेड्यूल बनाती है सो दैट दे हैव टू कंडक्ट द मीटिंग फॉर द एनम्स आशाज एंड गेटिंग द रिपोर्ट फ्रॉम दैम। ओके, इन एडिशनल एनम विल टेक अ वीकली फॉर नाइटलिंग मीटिंग। ठीक है, तो वीकली मीटिंग भी क्या होती है, कंडक्ट कराती है, ट्रैकिंग ऑल द प्रेगनेंसी बाय द नेम ऑफ द शेड्यूल एनम, ANC एंड PNC। जितने भी ANC PNC सर्विसेज हैं, ठीक है, उनके लिए शेड्यूल डेवलप करती है। और पोस्ट नेटल विजिट होम 3, 7 and 42 days for the delivery at the home sub center, 3, 7, 42 days of the institutional delivery। तो अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जितने भी होती हैं उन्हें फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल में बुलाती हैं। 0 डे में तो देखते हैं विजिट करते हैं, 3, 7 and 42 डेज में विजिट करते हैं। ठीक है, पोस्ट नेटल विजिट आर मेड टू फॉर द ईज डिलीवरी हैपन इन द एरिया एंड शी शुड रेंडर। सो जो भी मीन्स जिस भी लेडीज़ का बेबी होता है, ठीक है, उन्हें पोस्ट नेटल विजिट, दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू फाइंड आउट द कॉम्प्लिकेशन। तो उसके पोस्ट नेटल विजिट के रिगार्डिंग उन्हें क्या करती है, अवेयर करती है। ठीक है, और उनको डेज को फाइंड आउट करती है। इन द केस ऑफ द लो बर्थ वेट बेबीज, अ टोटल 6 पोस्ट नेटल विजिट आर टू बी द मेड ऑन 0, 3, 7, 14, 21, 28 डेज। ओके, अगर कोई बेबी जैसे लो बर्थ वेट बेबीज़ है, या फिर कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ का बेबी है, ठीक है, या फिर कोई सिकनेस का साइन है, ठीक है, इनकी बेबी का एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मलिटी से डिफर होता है। ठीक है, तो फिर 6 विजिट कंडक्ट कराती हैं पोस्ट नेटल, जो 0 डे में, 3 डेज में, 7 डेज में, 14 डेज में, 21 डेज में, 28 डेज में आफ्टर द डिलीवरी कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, देन इनिशिएशन ऑफ द अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर्स ऑफ द बर्थ, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द 6 month। ओके, सो मदर को अवेयर कराते रिगार्डिंग द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। दिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द बेबी हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो टू develop their immunity। Okay, assess the growth and development of the infant and under the 5 child, make the timely refer। Okay, so they have also the assess the under 5 child's infant, their growth and development they have to assess. If they are finding any kind of the abnormalities or any kind of the different thing, then they have to refer the baby to the PSC or the CC level। Provide the treatment to all the cases like डायरिया है, निमोनिया है, डिहाइड्रेशन या इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उसके रिगार्डिंग बेबीज़ को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। एंड इफ़ द ट्रीटमेंट आर नॉट अवेलेबल इन देयर सेंटर, दे हैव टू रेफर टू द अनदर सेंटर। ओके, नाउ द एजुकेट द मदर रिगार्ड, इंडिविजुअली ये करती है, एजुकेट करती है मदर रिगार्डिंग द मैटरनल हेल्थ केयर के रिगार्डिंग, ANC PNC विजिट के रिगार्डिंग, फैमिली प्लानिंग के, न्यूट्रिशन के, इम्यूनाइजेशन के, कम्युनिकेबल डिजीज़ के रिगार्डिंग क्या करती है, अवेयर करती है। ठीक है, असिस्ट मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ असिस्टेंट, फीमेल एंटीनेटल पोस्टल क्लिनिक एट द सब सेंटर। और जो MOICs हो तो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं एंटीनेटल विजिट को, एम्स और पोस्टल विजिट के लिए उनको क्या करती है, असिस्ट करती हैं। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग, जितने भी एलिजिबल कपल्स हैं उन्हें इन्फॉर्म करती है सो दैट दे हैव टू यूटिलाइज द कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड। ओके, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। इसके अलावा रजिस्टर्ड अपडेट करती है अपने जो भी इसकी रिपोर्ट्स वगैरह होती है, बिकॉज एनम जो होती है ना, मंथली रिपोर्ट देना होता है PSC लेवल्स, CSC लेवल्स में। ओके, सो उसके लिए क्या करती हैं, वो अपनी रिपोर्ट को मेंटेन करते हैं। स्प्रेड द मैसेज ऑफ द फैमिली प्लानिंग टू द कपल एंड मोटिवेट दैम टू फैमिली प्लानिंग इंडिविजुअल एंड द ग्रुप। तो फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग क्या करते हैं, कम्युनिटी और ग्रुप को अवेयर करती है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट करती है कॉन्ट्रासेप्टिव्स को कपल्स को थ्रू द आशाज और दाई के थ्रू, बिकॉज आशा और दाई क्या होती है, आपके विलेज लेवल में अपॉइंटेड होती हैं। ओके, provide the follow-up services to the female family planning, accept to identify side effect, give treatment of the sport of side effect, minor complaint refer to those of cases need the attention by the physician in the PSC hospital। Okay, सो follow-up केयर के लिए बोलती हैं। ठीक है, जो भी माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल
एंड मदर को एंटीनेटल टाइम पे कोई माइनर प्रॉब्लम्स है या पोस्टनल टाइम पे है या बेबीज़ को है या फिर किसी अनदर पर्सनस को है, तो उनको रेफर किया जाता है PSC लेवल में, ठीक है। इंटरनेट डिवाइसेस जो होते हैं उनको इंसर्ट करने के लिए जैसे IUD वगैरह होता है, ठीक है, तो उनको इंसर्ट कराया जाता है और एनम्स को ट्रेन किया जाता है, ठीक है। Stable the female depot holder, help the assistant female training and provide a continuous supply to conventional contraceptive to depot holder। तो स्टैब्लिश करती है फीमेल डिपोट होल्डर को, जो फीमेल असिस्टेंट होती हैं उन्हें ट्रेन करती है, ठीक है, कन्विंस करती है दैट कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव के रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन दे सकें, ठीक है। बिल्ड द रेपो एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ प्लीज रीड आशा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बिल्ड अप द रेपो इन अ कम्युनिटी सो दैट द कम्युनिटी पीपल आर फॉलो वट एवर द knowledge you are providing to the community people, okay। To identify the woman leader and train them with the help of the female assistant, so identify करती हैं वुमेन्स को, ठीक है, ट्रेन करती है फीमेल हेल्थ वर्कर्स को, ओके। पार्टिसिपेट इन द सो दैट जो पार्टिसिपेट करती है ये महिला मंडल मीटिंग में यूटिलाइज करती है गैदरिंग फॉर एजुकेशन वुमेन इन द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर जितनी भी गैदरिंग कराई जाती है उसमें क्या करती है, हेल्प आउट करती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आइडेंटिफाई द वुमन टू रिक्वायर द MTP अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द 1972, एजुकेट द वुमेन रिगार्डिंग द अनसेफ अबॉर्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सी ऐसी मदर्स होती हैं क्या करती है, सेल्फ मेडिकेशन करती है, MTP किट सेल्फ से लेती हैं, आफ्टर दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम मोर एंड क्रिएटिंग अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, ओके। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने एजुकेट करती है। न्यूट्रिशन लेवल में दे हैव टू आइडेंटिफाई द लो बर्थ वेट बेबीज माल न्यूट्रिशन अंडर द 0 to 5 year ऑफ द केसेस एंड प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। डिस्ट्रीब्यूट करती हैं आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट्स को PSC लेवल्स में एडोलसेंस गर्ल्स को करती हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी क्या जो एडोलसेंस गर्ल्स हैं उनके लिए पैड वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करवाए जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से, ठीक है। एडमिनिस्टर करती है विटामिन इन सॉल्यूशंस को एज पर द गाइडलाइन, एजुकेट करती है कम्युनिटी को रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन डाइट एंड द मदर एंड चाइल्ड की, तो मदर एंड चाइल्ड की न्यूट्रिशन डाइट को मेंटेन करने के लिए कम्युनिटी को अवेयर करती है। कोऑर्डिनेट करती है आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ में, ठीक है, बिकॉज बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आंगनवाड़ी लेवल में कंडक्ट करवाए जाते हैं एनम्स के थ्रू। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में एनम्स का क्या होता है, वाइड रोल है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो इम्यूनाइज द प्रेग्नेंट वुमेन विद द टिटनेस टॉक्साइड, administer the TPT vaccine, oral polio vaccine, measles vaccine and the BCG vaccine to all the infant and the child, ensure the injection safety, safe deposit record, so whatever the immunization they have to conduct for the antenatal mothers and the baby, they have to maintain the report and provide the and send the report to the PSC and CSC level, okay। Also to maintain the cold chain, okay, and manage the बट जैसे इम्यूनाइजेशन के बाद जो भी हम वेस्टेज वगैरह करते हैं उसके करती है प्रॉपरली वेस्ट जनरेट को मैनेज करती है, प्रिपेयर करती है वर्क प्लान को, बेनिफिट को, प्रिपेयरिंग द ड्यू लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिशली, कोऑर्डिनेट आंगनवाड़ी वर्कर आशा, मोबिलाइज द सेशंस डे एंड इंश्योर द वैक्सीनेशन। तो आप देखोगे वैक्सीनेशन के लिए करती है पहले से ही जो एनम्स होती है रिपोर्ट कर देती है आशाओं को, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट में जनरली वेडनेसडे या फ्राइडे को आते हैं इम्यूनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपकी जो आशाएं हैं उनको ये करती हैं, इन्फॉर्म करती है, मेंटेन करके रखती हैं ब्रिड ट्रैकर बॉक्स सब सेंटर, अपडेट द काउंटर फॉल्स, यूटिलाइज एंड फॉलोअर, ठीक है। जो ट्रैकिंग बैग्स होते हैं जैसे जिनमें वैक्सीनेशन वगैरह होती है उन्हें पहले से मेंटेन करके रखती है सो दैट कि जिस दिन उन्हें जाना होता है वैक्सीनेशन के लिए वो उस दिन उसे लेके जाए। मेंटेन करके रखती है रिकॉर्ड को, ठीक है, जो भी MCH या फिर चाइल्ड हेल्थ से रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स होते हैं। वर्क प्लान करती है विलेज के लिए, प्लेसेस के लिए, ठीक है, जो भी उससे एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करने, पोस्टर पेंटिंग वगैरह की मैसेज प्रिपेयर करती है कम्युनिटी के लिए। और इसके अलावा प्लेस आउट क्या करती है, ड्रॉप आउट विजिट करती है, ठीक है, और बेनिफिट्स लेती है पर 3 सेक्शन। कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी क्या करती है ये इसका एक वाइड रोल है। कम्युनिकेबल डिजीज़ जितनी भी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू फाइंड आउट, इमीडिएटली क्या करती है फाइंड आउट करती है केसेस को, कितने नंबर ऑफ द केसेस वहाँ पे प्रेजेंस है, कितने पर्सनस हैं जिनको क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम्स जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम्स सफ़र कर रहे हैं, कितने केस सस्पेक्टेड हैं, ठीक है, अंडर 15 ईयर बेबीज़ कितने हैं, ठीक है, जिसमें ये हेल्प आउट करती है मेल हेल्थ वर्कर्स को, ठीक है, और ये सब सुपरवाइज कराया जाता है लेडी हेल्थ विजिटर के थ्रू। इसके अलावा ये क्या करती है HIV के लिए यानी कि और STI काउंसलिंग कराती है, ठीक है, रिसीव करती है ट्रेनिंग,
एनम्स को डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स में भी इन्वॉल्व कराया जाता है। जो भी गवर्नमेंट में न्यू चेंजेस आते हैं उसके लिए ट्रेनिंग को उसके लिए क्या होता है, एनम्स को ट्रेन करवाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा लेप्रोसी केसेस में भी उन्हें फाइंड आउट करती है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है थ्रू द कम्युनिटी थ्रू द PAC और CAC लेवल में। MTP की किट आती है, ठीक है। तो MTP किट के लिए जो MTP के जो पर्सन होता है, जैसे MTP नॉट MTP सॉरी MDT, ठीक है, लेप्रोसी का जो केस होता है पहले उसे फाइनलाइज करती है कि इस पर्सन को लेप्रोसी है। उसके बाद उसका नेम वगैरह एडिट कराया जाता है हॉस्पिटल में, और पर्सन क्या होता है किसी पर्टिकुलर डे आता है, ठीक है, जिससे तो हॉस्पिटल में ही मेडिसिन मिलती है, ठीक है। और रेगुलरिटी उसकी मेंटेन होनी चाहिए। जैसे कोई फार का पेशेंट है तो उसको होता है मेडिसिन दी जाती है 15 डेज़ के लिए, तो 15 डेज़ के बाद पेशेंट क्या कहते हैं फॉलोअप करना है, तो वो भी होता है इंश्योर करती है एनम्स, ठीक है। अपडेट कराती है सब सेंटर लेवल में ट्रीटमेंट को, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए जैसे किसी को डायबिटिक है, स्ट्रोक है, तो कितने पेशेंट हैं जिन्हें आयोडीन डेफिशिएंसी है, कितने जिनको डायबिटीज़ है, कितने हार्ट डिसऑर्डर्स है, ठीक है। ये सारा भी करती है, रिपोर्ट मेंटेन करती है। कम्युनिटी मेंबर को स्क्रीनिंग करवाती है उनकी, उन्हें अवेयर करती है, ठीक है। जब भी कोई कैंप ऑर्गेनाइज कराया जाता है कम्युनिटी लेवल में तो उसके रिगार्डिंग पहले से हेल्थ एजुकेशन देती हैं वो पीपल्स को, सो दैट कि उस कैंप का यूटिलाइज हो सके और कैंप का वो लोग अटेंड कर सकें, ठीक है। आइडेंटिफाई करती है रेफरल केसेस को, ठीक है, जो मोर इलनेस के केसेस होते हैं जिसके लिए PAC CAC लेवल में ट्रीटमेंट अवेलेबल्स नहीं होता, ठीक है। पार्टिसिपेट करती हैं NCD के प्रिवेंशन के लिए, प्रमोशन करती है लाइफ स्टाइल को, आइडेंटिफाई कराती है पर्सनल जैसे फ्लोराइटिस है या फिर कितने पर्सन हैं जिन्हें फ्लोराइटिस सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, कितने पर्सन को डिफॉर्मिटीज़ हो चुकी हैं, उनका रेट को रिडक्शन करने के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। मोटिवेट करती है, रजिस्टर्स करती है किसको, पीपल्स को, ठीक है। वाइटल इवेंट के लिए क्या था, एनम्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज एनम आर प्रोवाइडिंग द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रिपोर्ट और द मैटरनल मोर्टालिटी रेट रिपोर्ट्स, ठीक है, कम्युनिटी में। इसके अलावा कितने एंडेमिक केसेस है, एपिडेमिक केसेस हैं, कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन जिसकी वजह से डेथ हुई है, ठीक, कितनी बर्थ हुआ है, ये सारी जो रिपोर्ट्स है वो कहता है जो वाइटल इवेंट्स की रिपोर्ट्स है उन्हें साइन करती है एनम्स, ठीक है। रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते, रजिस्टर्ड करती है, प्रेग्नेंट वुमेन को अर्ली कांटेक्ट करती है, इन्फेंट 0 to 1 year ऑफ द एज के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करती है, वुमेन रिप्रोडक्टिव एज 15 to 44 ईयर के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करती है, अंडर अबव 5 year एज एडोलसेंस के रिगार्डिंग प्रीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल आईयूडी इंजर्शंस, ठीक है, के नंबर ऑफ द फीवर केसेस, नंबर ऑफ द ब्लड साइड प्रिपेयर, मलेरिया पॉजिटिव केसेस रिपोर्टेड, cases given the radical treatment, all these things they have to report and maintain, okay। treatment of the minor elements, जैसे minor elements के cases जितने भी होते हैं जो प्राइमरी लेवल में आते हैं उनको ट्रीटमेंट देती है, आयुष से भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाती है। टीम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। टीम एक्टिविटी का मतलब है टू कोऑर्डिनेट विद द अदर हेल्थ टीम मेंबर्स, जैसे लेडी हेल्थ विजिटर के साथ, आशा के साथ, एनएम के साथ, मेल हेल्थ विजिटर के साथ, इन सब के साथ रोल प्ले करती है और उनका मीन्स जो भी हमारी हेल्थ फैसिलिटी हैं उन्हें कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है। मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को भी कहता है फॉलो करती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो एनम्स होती हैं वो डोर टू डोर सर्वे करती हैं, हाउस टू हाउस सर्वे करती हैं, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ओके। और जहाँ पे कि वो नहीं कर पाती हैं वहाँ पे क्या होती है, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, कम्युनिटी हेल्थ जो पीपल्स होते हैं उनके थ्रू क्या करती है, वो सर्वे करती हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो सर्वे रिपोर्ट कराई जाती है वो वंस एनुअली अप्रैल मंथ में करवाई जाती है, ठीक है। सर्वे के अकॉर्डिंग जितने भी सर्वे रिपोर्ट में सपोर्ट करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर, कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर, पंचायत मेंबर, विलेज हेल्थ sanitation nutritional committee member. The village health worker would take to lead to be the accountable for the organization of these survey and the subsequent participation of the list of the referral the survey would be including. तो जो एनम्स होती हैं वो क्या करते हैं, सर्वे कंडक्ट करवाते हैं। रोल ऑफ द एनम एंड द फैसिलिटी ऑफ द आशा, ठीक है। तो जो एनम का रोल क्या है आशा को फैसिलिटेट करने का, तो जो एनम्स होती हैं वो आशा को गाइड करती हैं, वो वीकली रिपोर्ट उनसे लेती हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्कशन करती जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी मीन्स एक्टिविटी परफॉर्म करने में आशा को जो प्रॉब्लम होती है उन्हें शॉर्ट आउट करती हैं। रिसोर्सेज अवेलेबल कराती है, ट्रेनिंग अवेलेबल करवाती है आशाओं के लिए, आशाओं से रिपोर्ट लेती है रिगार्डिंग कितने एलिजिबल कपल हैं, कितनी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी हेल्थ डेज होती हैं आंगनबाड़ी में उससे पार्टिसिपेट करती हैं। आशाओं को मोटिवेट करती हैं कि वो प्रेग्नेंट वुमेन को मोटिवेट करें हॉस्पिटलाइज डिलीवरी के लिए, हेल्थ विजिटिंग के लिए, एंटीनेटल विजिट, पोस्टनेटल विजिटिंग के लिए,
इसके अलावा जो आशाएं होती हैं उन्हें डोज शेड्यूल बताती है कि कब कौन, जैसे ओरल पिल वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे आप एम जैसे माला डी और माला आयन है, ठीक है। तो पीपल्स बहुत से ऐसे होते हैं स्पेशली इन द हिली एरियाज़ ना, वो हॉस्पिटल नहीं आ पाते हैं, तो उनको डोर टू डे कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग आशाओं को ट्रेन करती है किस तरह से उन्हें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आशाओं को ट्रेनिंग शेड्यूल बताती हैं, ट्रेन करती है, उन्हें टीए प्रोवाइड करती है। आपको पता होगा कि जो आशाएं होती हैं उन्हें हर एक इम्यूनाइजेशन के लिए मनी मिलता है, ठीक है। और अगर वो हॉस्पिटलाइज डिलीवरी करवाती हैं तो एक हॉस्पिटलाइज डिलीवरी के लिए भी उन्हें मनी प्रोवाइड किया जाता है। ये एक तरह का क्या है, रिवॉर्ड और मोटिवेशन है, सो दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज डिलीवरी करा सकें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रोल एंड फंक्शन ऑफ द पब्लिक हेल्थ नर्स जॉब ड्यूटीज़। तो several patient by visiting the home, determining the patient and the family needs, develop the healthcare plans, providing the nursing services, treatment, referring the patient with the school and the emotional problem to other community agencies, okay। so जो public health nurse होती है, public health nurse का मतलब होता है जो public levels में ये ना माशा तो कहता है कम्युनिटी लेवल में करती हैं, तो पब्लिक लेवल जो पब्लिक की प्रॉब्लम्स है, उनकी जो नीड है, उनके अकॉर्डिंग क्या करती है, पहले फाइंड आउट करती है उनकी प्रॉब्लम्स को और फिर हेल्थ प्लान बनाती है, उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन जितने भी एनजीओज वगैरह होते हैं ना उन साथ भी कोऑर्डिनेट करती है, हेल्प करती है, कम्युनिटी हेल्थ केयर टीम को कोऑर्डिनेट करती है उनके साथ, जो भी वो प्लानिंग करते हैं उसमें कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है। पार्टिसिपेट करती हैं, केस कॉन्फ्रेंस, फिजिशियन, हॉस्पिटल, रिहेबिलिटेटिंग पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव टू अदर हेल्थ एजेंसी, जितनी भी अदर हेल्थ एजेंसीज हैं जो भी वो एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराते हैं, प्लानिंग करते हैं, उनमें वो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। प्रोवाइड द हेल्थ इन्फॉर्मेशन बाय द इंस्ट्रक्टिंग फैमिली इन द केयर ऑफ द रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट, मेंटेनिंग एंड द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज फॉर द फैमिली मेम्बर, टीचिंग होम नर्सिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन इन द सब रिलेटेड टू द इंडिविजुअल कम्युनिटी वेलफेयर, ठीक है। इसके अलावा क्या करती है, जो पब्लिक हेल्थ नर्स होती है वो हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, फैमिली को इंस्ट्रक्ट करती है, रिहेबिलिटेट करती है पेशेंट को, जैसे डिसेबल पेशेंट्स होते हैं उन्हें रिहेबिलिटेट करती हैं, मेंटेन करती है पब्लिक की हेल्थ को, ठीक है, प्रिवेंट करती है फैमिली को डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ कंडीशन से, टीच करती है, उन्हें होम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है, मैटरनल चाइल्ड हेयर केयर प्रोवाइड करती है, इंस्ट्रक्शन देती है और अदर सब्जेक्ट्स से रिलेटेड इंडिविजुअल कम्युनिटी को एजुकेट करती है, ठीक है। सेल्फ गार्ड हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन बाय द पार्टिसिपेटिंग द चाइल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस। तो चाइल्ड हेल्थ जो कॉन्फ्रेंसेज होती है चाइल्ड की हेल्थ से रिगार्डिंग जितनी भी जो काउंसलिंग करवाई जाती हैं, ठीक है, स्कूल हेल्थ में जो विजिटिंग करवाई जाती हैं, इसके अलावा पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, इन सब में क्या करते हैं, कंडक्ट करती है, इन सब में कहते हैं पार्टिसिपेट करती है, कंडक्ट करती है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को भी कंडक्ट करवाती है, अरेंज एंड द कन्वेंशनेट एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ द सिक ऑफ द इंजर्ड पर्सन बाय द कोऑपरेटिंग विद द फैमिली, कम्युनिटी एजेंसी, मेडिकल पर्सन। तो जितने मेडिकल पर्सनस होते हैं, फैमिलीज होते हैं, उन सबके साथ क्या करती है, कॉपरेट करती है, रिहेबिलिटेट केयर और सिक केयर प्रोवाइड करती है, इम्प्रूव करती है एक्चुअली क्वालिटी को। और जो पब्लिक हेल्थ नर्स होती है वो रिसर्च की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, वो स्टडी करती है कम्युनिटी की, पीपल्स की, ठीक है, और देखती हैं कि कितने लोग कितनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, कौन से ऐसे न्यू डिजीज़ कंडीशन जिसकी वजह से पीपल्स की हेल्थ अफेक्ट हो रही है, कि उनके लाइफ स्टाइल की वजह से उनकी पीपल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उसके बेसिस में फिर वो नेक्स्ट डे के लिए प्लान करती है, ठीक है। कीप व्हीकल एंड द इक्विपमेंट ऑपरेशन बाय द फॉलोइंग ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, troublest hosting and breakdown, maintaining the supply, performing preventing maintenance and the calling for the repair, ठीक है। तो अगर कोई भी इक्विपमेंट मीन्स वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर मीन्स वो वर्किंग में नहीं है, ठीक है, तो उन सबको क्या कहते हैं, रिपेयर करवाती हैं। कीप द व्हीकल इक्विपमेंट ऑपरेशन बाय द फॉलोइंग, जो भी ऑपरेशन में जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उन सबको अगर ब्रेक डाउन हो गया है तो उन्हें मेंटेन करवाती हैं। और इसके अलावा कीप द सप्लाई रेडी टू इन्वेंट्री स्टॉक, प्लेसिंग ऑर्डर, वेरीफाई रिसिप्ट। तो जो भी हमारी इन्वेंट्री वगैरह होती हैं उनमें क्या करती है, उसके लिए सप्लाई करती है, जैसे जो भी नीड है हमें, जैसे इक्विपमेंट की नीड है, मेडिसिन की नीड है, उन सब के लिए वो सब इक्विपमेंट की मेडिसिन सप्लाई करवाती है। जितने भी लीगल चैलेंजेस होती हैं उन्हें अवॉइड करती है। लीगल जो रिक्वायरमेंट की पेशेंट इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, तो पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करती है। लीगल जो भी इशू होते हैं उन्हें क्या करती है, स्प्रेड नहीं करती, मेंटेन करती है कॉन्फिडेंशियलिटी के पेशेंट को। अपडेट करती है पब्लिक हेल्थ जॉब नॉलेज, पार्टिसिपेट इन द एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, रीडिंग द प्रोफेशनल पब्लिकेशन, मेंटेन द पर्सनल नेटवर्क, पार्टिसिपेट इन द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा पब्लिक को क्या करती है,
जॉब नॉलेज के रिगार्डिंग पार्टिसिपेट करवाती है, प्रोफेशनल पार्टिसिपेशन करती है, उन्हें अवेयर करती है, ठीक है। नेटवर्क पार्टिसिपेटिंग में, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें कम्युनिकेट करती है। इन्हांस करती है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सिटी रेपुटेटिंग बाय एक्सेप्टिंग ओनरशिप ऑफ द अकम्पलिश न्यू एंड डिफरेंट रिक्वेस्ट एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटी टू एड द वैल्यू ऑफ द जॉब अकम्पलिश, ठीक है। तो जॉब अकम्पलिशमेंट में भी क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ नर्स स्किल एंड क्वालिफिकेशंस, तो वर्बल कम्युनिकेशन, हेल्थ प्रमोशन, मेंटेन, लिसन, क्वालिटी मैनेजमेंट, एनर्जी लेवल, इंटीग्रिटी, इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फॉर्मिंग अदर, नर्सिंग स्किल, मेडिकल टीम वर्क, मल्टीटास्किंग, ये सारी क्या होते हैं, क्वालिटी उनमें होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जीएनएम या बीएससी नर्सिंग होता है, स्टेट रजिस्टर्ड काउंसिल, ठीक है। पब्लिक हेल्थ नर्स जो होती है प्रोवाइड करती है केयर को, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग करवाती है हेल्थ वर्कर की जो कि डिलीवर करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज कम्युनिटी में, प्लान करती है आरसीएस जो उनकी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जो प्रोग्राम्स होते हैं हेल्थ वर्कर्स के लिए प्लान करती है। फॉलोअप जितनी भी सर्विसेज उन्हें पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे स्कूल हेल्थ है, फैमिली हेल्थ है या फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में असिस्ट करती है। इम्प्लीमेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जितने भी होते हैं उन सब में हेल्थ मीन्स असिस्ट करती हैं। सुपरवाइज करती है होम विजिट फंक्शनिंग को, कोऑर्डिनेट करती है मेल या फीमेल वर्कर को, आइडेंटिफाई करती है स्टडी को, रिसर्च में पार्टिसिपेट्स करती है कम्युनिटी लेवल के रिसर्च में, ओके, तो दैट की फाइंड आउट कर सके प्रॉब्लम्स, अरेंज करती है एजुकेशन प्रोग्राम कम्युनिटी के लिए और मेंटेन करके रखती है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को। एज अ सुपरवाइजर वर्क करती है, ठीक है। सो गाइड करती है, सुपरवाइज करती है जितने भी उसके डिस्ट्रिक्ट पब्लिक मीन्स जितने भी उसके अंडर हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये करती है, रिस्पॉन्स करती है। जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स होती है, ठीक है, उन्हें रिस्पॉन्स करती है किसके रिगार्डिंग, सुपरविज़न के, प्रोविज़न के, इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग, असिस्ट करती है फिलॉसफी में, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। नेक्स्ट ईयर की जो प्लानिंग होनी है, मतलब प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करती है, यूटिलाइज करती है, बजट अलॉट, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना बजट चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी सप्लाई होनी है इक्विपमेंट्स या ड्रग्स की, वो सारी क्या करती हैं, फाइनलाइज करती है पब्लिक हेल्थ नर्स, ओके। पब्लिक के लिए क्या कौन से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, उन्हें सारा फाइनलाइज कराया जाता है पब्लिक हेल्थ नर्स के थ्रू। इसके अलावा आरसीएच के जो ग्रुप होते हैं एजुकेट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं कम्युनिटी मेंबर्स के लिए थ्रू स्कूल चिल्ड्रंस के लिए आरसीएस ग्रुप मेंबर्स के थ्रू, ठीक है। सुपरवाइज करते हैं रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर्स, ओके। तो आपके जो ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर होते हैं, दैट इज़ द ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ द kind pin for the organization information education communication activity related to the health and family welfare program in the primary health center और ब्लॉक एरिया। जो ब्लॉक एरिया या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइज करना रिगार्डिंग द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर का वर्क होता है, ठीक है। ये करते हैं, ही वुड बी अंडर द इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड ही वुड बी फंक्शन अंडर द टेक्निकल सुपरवाइजर एंड गाइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मास एजुकेशन द इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये एज अ टेक्निकल फील्ड में वर्क करते हैं, ठीक है, एज अ मास्टर एजुकेशन एंड द इंफॉर्मेशन ऑफिसर की तरह ये वर्क करते हैं। हिज मेन फंक्शन वुड रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रमोट करना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को। ही विल बी कंसल्ट द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फॉर्मुलेटिंग द स्पेशल प्रोग्राम ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में पर्टिकुलर कौन सा प्रोग्राम फॉर्मुलेट करना है उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, ये हेल्थ डिस्कशन करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है। ड्यूटीज़ एंड फंक्शन की ड्यूटीज़ क्या होती है, आइडेंटिफाई द एजुकेशन नीड रिलेटेड टू द वेरियस मैटर्निटी एंड चाइल्ड हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एरिया। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ऐसे लैकिंग पॉइंट्स है, लैक ऑफ एजुकेशन एरियाज़ हैं जो कम्युनिटी पीपल्स को अवेयर नहीं है, उसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं हेल्थ कैंप्स या फिर काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, गैदरिंग करते हैं, कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं मेडिकल और कंसल्ट करते हैं मेडिकल ऑफिसर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, फ्रॉम द हेल्थ कमिटीज ऑफ द विलेज लेवल टू एनालिस्ट द कॉर्पोरेट ऑफ द ओपिनियन लीडर स्पेशली वुमेन फॉर मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ यूथ फैमिली वेलफेयर मीडिया प्रोग्राम वंस अ मंथ 12 मीटिंग पर ईयर, ठीक है। तो क्या करते हैं, मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं, जितने भी वुमेन्स होते हैं जो क्या करती हैं मैटरनल चाइल्ड हेल्थ में इन्वॉल्व होती हैं उनके लिए मंथली एक मीटिंग कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। एक कमेटी बनाते हैं विलेज लेवल में, ठीक है, तो उसके लिए मंथली मीटिंग कराते हैं। सो ईयर में 12 मीटिंगें कंडक्ट कराते हैं।
प्रोक्योर द मेंटेन द मैक्सिमम यूज़ ऑफ द मास मीडिया इक्विपमेंट, और जितना हो सके जो मास मीडिया इक्विपमेंट से पैम्पलेट है, या फिर आपने देखा होगा गवर्नमेंट में ना स्मॉल स्मॉल पैम्पलेट या फिर बुकलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो हिंदी में लिखी हुई होती है, ठीक है। तो ये सारा ब्लॉक जो डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट जो नर्सेज होती हैं उनके थ्रू किया जाता है, क्योंकि टेक्निकल फील्ड में वर्क करती हैं, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें मेंटेन करके रखती हैं, कितने टूर हुए हैं, कितने प्रोग्राम हुए हैं, कितनी काउंसलिंग हुए, कितने गैदरिंग हुए, कौन कौन से प्रोग्राम कंडक्ट करा लिए हैं, ठीक है। मैप होता है इनके पास एक पर्टिकुलर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कि इस एरिया को उन्होंने कवर करना है। मेंटेन करके रखते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ द प्रोक्योर रेगुलर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द integrated information education communication material and the contraceptive ensure the proper distribution ensuring the availability of the each and every health staff namely and the female worker and the male supervisor ensure the display of the material at the each sub centers। तो जितने भी सब सेंटर हैं PSC है CSC है वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव का डिस्ट्रीब्यूशन उसके रिगार्डिंग पैम्पलेट्स का, या फिर आपने देखा होगा स्मॉल स्मॉल बुकलेट्स होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कराई जाती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ होता है हाउ दे आर मेंटेनिंग देयर हेल्थ ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी पोस्टनल टाइम बेबीज। तो ये सारे में जितनी सप्लाईज होती हैं मटेरियल की वो सारी ब्लॉक लेवल से करवाई जाती हैं, ठीक है। दैट इस्टेब्लिश करती हैं वर्किंग रिलेशनशिप विद द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एनालिस्ट स्टाफ कोऑपरेशन एंड द इम्प्लीमेंट ऑफ द मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। सो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को अपडेट करने के लिए रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके साथ वर्क करती है, ठीक है, कोऑपरेट करती है सो दैट के फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के जो गोल है उसे अचीव कर सकें, ठीक है। कोऑर्डिनेट विद द एजुकेटर डिपार्टमेंट, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है उससे कोऑर्डिनेट करती हैं, ठीक है। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, नेहरू युवा केंद्र से, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इन सारी डिपार्टमेंट्स क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट करती हैं सो दैट कि जो हमारा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो MCA जो स्कीम्स हैं हमारी गवर्नमेंट की वो क्या हो सकें कंप्लीट हो सकें, ठीक है। ही शुड बी पार्टिसिपेट ऑल द फंक्शन फेस्टिवल, कंडक्ट द ब्लॉक एरिया, कंडक्ट द प्रोपेगेंडा एंड द पब्लिसिटी इन द फीमेल वेलफेयर स्कीम। सो फीमेल वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो सेलिब्रेट कराते हैं, एड्स प्रोग्राम है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, कैंसर अब आ गया, मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम्स हैं, जितने ही प्रोग्राम्स हैं उनको फेस्टिवल्स करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, गो थ्रू करवाती हैं कम्युनिटी के साथ, ठीक है। ही विल बी मेंबर ऑफ द लोकल ब्लॉक लेवल फैमिली वेलफेयर। तो क्या होते हैं मेंबर होते हैं लोकल ब्लॉक लेवल फैमिली वेलफेयर के, ठीक है। कम्युनिटी एंड एक्ट ऑफ द रिसोर्स पर्सन की तरह ये एक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइज कराती है मास मीडिया प्रोग्राम को, एग्जीबिशंस कराती है, मंथली मीटिंग कराती है, ठीक है। मार्केट लेवल में जैसे आपने देखा होगा स्टॉल्स वगैरह लगते हैं वो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वो भी कंडक्ट करवाता है, ठीक है। इसके अलावा वर्क विद द इंडस्ट्रियल फैक्टोरिया एंड अदर गवर्नमेंट जितनी भी नॉन गवर्नमेंट एजेंसी उसके साथ वर्क करती हैं जो क्या करते हैं फोकस करती है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में, ठीक है। अप्रोप्रिएट यूज़ करवाया जाता है इंडिविजुअल, ग्रुप और मास के थ्रू मास मीडिया कम्युनिकेशन का। ऑर्गेनाइज करती हैं एजुकेशन प्रोग्राम को फॉर्मल नॉन फॉर्मल जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनके साथ। कोऑर्डिनेट करती हैं एनिमेटर, एडल्ट एजुकेटर डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजर लर्नर क्लासेस के लिए क्या करती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइज करती है शॉर्ट ओरिएंटेशंस, ट्रेनिंग कैंप्स, एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर द वेरियस वॉलंटरी एजेंसी और अदर हेल्थ टारगेट्स। देन कंडक्ट द पीरियोडिकल इवैल्यूएट टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशंस, ठीक है। टूर 15 डेज के अंदर मंथली एक टूर विजिट करती हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट करती है जो भी इन्होंने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए हैं, मंथली रिपोर्ट करती है मास मीडिया कम्युनिकेशंस की, ठीक है। बिफोर द 10th ऑफ द एवरी मंथ डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ ऑफिसर कॉपी to a district mass education information officer, okay. Then the duties and responsibility of the post of the community health nurse. community health nurse की responsibility क्या होती है? community health nurse actually shall work under the immediate control guidelines supervision of the medical officer के अंडर में आते हैं community health nurse, ठीक है। अभी क्या है community health nurse का बहुत ज़्यादा रोल है, आपने देखा होगा GM के बाद सब लोग क्या करते हैं CHO community health officer की वर्क करता है, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती हैं, ये प्राइमरी ब्लॉक लेवल एडमिनिस्ट्रेटर लेवल में वर्क करती हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके इमीडिएट कंट्रोल गाइड किए जाते हैं, सुपरवाइज किए जाते हैं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के थ्रू,
जो कि है द ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, ठीक है, एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कंट्रोल सुपरविजन गाइडेंस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ सर्विसेज कंसर्न। तो जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर क्या करती हैं, ये आती हैं, ठीक है। जो फीमेल कंपोनेंट्स ऑफ द फील्ड ऑफ द स्टाफ ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर health sub center, the block shall work under the immediate technical control, the supervision of the community health nurse over the administrative control of the medical officer primary health center, ठीक है। ये ऑलरेडी हमको बता दिया है कि क्या कहते हैं, ब्लॉक के अंडर में आती हैं। ये सुपरवाइज करती हैं, गाइड करती हैं, और कंपोनेंट ऑफ द फील्ड हेल्थ स्टाफ मीन सुपरवाइज करते हैं, गाइड करती हैं फीमेल हेल्थ जो स्टाफ होते हैं, जैसे ब्रेड हेल्थ नर्स है या फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर्स हैं, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सबको क्या करते हैं, ये सुपरवाइज करती हैं, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स हरसेल्फ कन्वेंट द प्लेस टोपोग्राफी एंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक हेल्थ नीड एंड डिमांड ऑफ द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन द ब्लॉक एरिया। तो जो भी पब्लिक की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है ब्लॉक एरिया में, वो आइडेंटिफाई करती है और फुलफिल करती है, ठीक है। Community health nurse is responsible to assist the medical officer to primary health center concerned, thus to ensure performing and the achieving the female component of the field health staff primary health center sub center respect to the various health program including the family welfare program in the block areas। So block area में जितने भी आपके health related programs हैं उन्हें सबको conduct करती है, एक तरह से उन्हें guide करती है, supervise करती है, ठीक है। फंक्शन क्या है मैटर्निटी में इनका, ये क्या करती है, रेंडर करती है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को, प्रीनेटल इंटरनेटल पोस्टनेटल सर्विसेज को, ठीक है। इसके अलावा जितने भी फील्ड में स्टाफ के थ्रू जो भी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उससे भी सुपरवाइज करती है, ओके। इम्यूनाइजेशन में भी क्या करती है, ये पार्टिसिपेट करती है, जितने मेडिकल ऑफिसर के साथ क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है इम्यूनाइजेशन से रिगार्डिंग जो भी नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ हैं या जो शेड्यूल है उन्हें फॉलोअप करती हैं, ठीक है। Then population of the each place habitation in the block area, female component of the field health staff सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रॉपर कैलेंडर ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड प्लेस, जो प्रॉपर मतलब क्या करते हैं, कैलेंडर डेवलप करती हैं कि इतने दिन में ये प्रोग्राम कंडक्ट होते हैं, एक काइंड ऑफ मास्टर प्लान बनाती है, मास्टर रोटेशन प्लान बनाती है कि हमें इतने होल ईयर का कि हमें इतने मंथ में ये हेल्थ फैसिलिटी कंडक्ट करवानी है, ठीक है। फैमिली वेलफेयर के रिगार्डिंग क्या होता है, जो भी नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की जो गाइडलाइन होती हैं उन्हें क्या करती है, सब सेंटर लेवल्स में PSC CSC लेवल्स में फॉलोअप कराती है, ठीक है। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंफॉर्मेशन एजुकेशन के लिए, ये प्रोवाइड कराती हैं इंफॉर्मेशन एजुकेशन, किसके साथ, ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर के साथ मोटिवेट करती हैं, ठीक है। So the summary is that today we'll discuss about the definition, introduction, composition, function of the health team members, role of the health person in the different levels. Okay, so I hope you understood. So by this, because this is your 6th unit now, already I'll cover the health team previously and the remaining topic is today we'll cover. So in that there are some question like define the health team, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है फाइनल में, enumerate the composition of the health team, discuss the function of the health team, explain the detail about the district public health nursing officer, describe the role and responsibility of the health block health nurses, discuss the role of the responsibility of the public health nurse, describe the role and responsibility of the lady health visitor, understand the role and responsibility of the health worker female। तो like that इस तरह से क्या सकते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो अपने लिए। दीज आर द एक्चुअली द bibliography which I am referring, and thank you so much. If you have any doubt you will free to ask the question.